Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any query that you may have on business, economic and stock market matters. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। थैंक यू। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेक। Prime Minister interacts with leading economists on charting economic agenda for post-COVID world. Government aims to increase country's fish production to 22 million tons by 2025, says Union Minister of State for Fisheries Pratap Chandra Sarangi. And US markets scale new highs on hopes of more stimulus. प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद की दुनिया का आर्थिक एजेंडा निर्धारित करने के बारे में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बात की। केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक 2 करोड़ 20 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और अमेरिकी बाजारों ने अधिक प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद में नई ऊंचाइयों को छुआ। Prime Minister Narendra Modi interacted with India's leading economists on charting the economic agenda in the post-COVID world. Prime Minister Modi appreciated the inputs received from the participants and highlighted the crucial role such interactions played in setting the national development agenda. He highlighted how the COVID-19 pandemic and the subsequent management threw up new professional challenges for all those involved. Mr. Modi underlined that together with a fiscal stimulus, the government also tried a reform-based stimulus which was seen through historic reforms in agriculture, commercial coal mining and labour laws. The Prime Minister explained his vision behind an Atmanirbhar Bharat, where Indian companies are integrated in global supply chains in a manner not seen before. He underscored the faith shown by foreign investors in India's growth story, with foreign direct investment growing by 11% between April and October despite a global recession. Mr. Modi highlighted the economic potential set to be unleashed by the National Optical Fibre Network, providing internet connectivity to some of India's most remote areas. On infrastructure, the Prime Minister highlighted the National Infrastructure Pipeline as the government's commitment to developing world-class infrastructure. The Prime Minister stated the importance of partnerships in achieving the goals and that such consultations play a crucial role in setting the broader economic agenda. The attendants were broadly in agreement that next year will see robust growth and suggested measures to maintain this growth rate to drive India's socio-economic transformation. The participants stressed
the importance of investing in public health and education, as human capital would also likely emerge as a driver of growth, especially in the knowledge economy going forward. They also stressed on labor-intensive manufacturing, given the success India has achieved in launching the Production-Linked Incentives (PLI) scheme in mobile manufacturing. और इस बीच गुरुग्राम से हमारे श्रोता फुलेंद्र आहूजा हमसे जुड़ चुके हैं। आहूजा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी का भी रिसेंटली एक कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो उसका फ्यूचर कैसे रहेगा सॉफ्टवेयर का आने वाले टाइम में, आने वाले 1 से 2 सालों में? जी हरवीर जी। देखिए, आईटी सेक्टर के लिए काफी बेहतर पोटेंशियल है, और जिस तरीके से इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों, उसमें आईटी सेक्टर के लिए बेहतर है। और अभी अगर आप देखेंगे जो एक आध बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आए भी हैं Q3 के, वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। Okay, joining us now from Delhi is Satish. We welcome you, Satish. Please go ahead and ask your question. जी नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ सर, ये पिछले काफी टाइम से 6-7 महीने से डॉलर में गिरावट आई है, लेकिन भारत में सिर्फ 2 या 3 रुपए की आई है, जबकि मैंने इंडेक्स में देखा कई देशों में 10 की 20 की काफी ज्यादा गिरावट आई हुई है। तो भारत में सिर्फ क्या 2 रुपए की आई है? क्या हम डॉलर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं? और सर एक सवाल और है, ये भारत सरकार जैसे जो 1 रुपए का जो सिक्का है उसका साइज बहुत छोटा करती जा रही है, जिसको कोई भी लेता नहीं है, कोई देता नहीं है, कोई भी दुकानदार लेना पसंद नहीं करता, कोई भी ग्राहक भी नहीं है। वो 1 पैसे से भी कम छोटा साइज कर दिया। सर क्यों इसका इतना छोटा साइज? जी सतीश जी, हाँ ठीक है। हरवीर जी, असल में देखिए कि डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, और उसका एडवांटेज हमें अलग तरीके से मिलता है। जो एफआईज का फ्लो हम देख रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज में, जिनमें हम लोग भी हैं, उसके संदर्भ में हमें फायदा मिलता है। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि डॉलर के मुकाबले जो बाकी करेंसी हैं वो किस तरह से स्ट्रेंथन हो रही है, उसी अनुपात में बाकी सभी करेंसी होंगी। हर करेंसी का और इकोनॉमी का अपना डोमेस्टिक और डायनेमिक्स है, और उसका ग्लोबल जो लिंकेजेज है वो है। और डिमांड एंड सप्लाई का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है करेंसी को के एक्सचेंज को लेकर के। तो इसलिए ये सिमिलैरिटी नहीं पाई जा सकती कि जो अगर दूसरी करेंसी ज्यादा अप्रिशिएट हुई तो हमारी उतनी होगी। और एक तरह से ये भी है कि एक्सपोर्ट अर्निंग के हिसाब से भी कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन होना बेहतर नहीं माना जाता करेंसी का। एक तो ये है। इनका दूसरा सवाल था रुपी के साइज को लेकर के। वो साइज तो अपने जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं या जो उस तरीके का प्रोसेस है उसमें है, लेकिन लीगली कोई भी मना नहीं कर सकता उसके एक्सेप्टेंस से। इसलिए ये एग्जैगरेटेड क्लेम है कि कोई नहीं लेता, ऐसा नहीं है, अभी भी चलता है और उसका एक्सेप्टेंस है कॉइन का, 1 रुपी कॉइन का। जी हरवीर जी, कल प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ बात की और काफी महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। और खासतौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सरकार ने जो बात की, प्रधानमंत्री ने जो बात की कि जो रिफॉर्म बेस्ड जो स्टिमुलस की उन्होंने बात की, और उसका उन्होंने कहा कि कई सेक्टर्स पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। तो अगर हम एग्रीकल्चर में अगर देखें तो किस तरह का सरकार कोशिश कर रही है रिफॉर्म लाने की, और क्या स्टिमुलस सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे कि एक तो ये जिस तरह से पीएम ने कल कहा है कि एक तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम्स का जो है वो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ज्यादा है। एग्रीकल्चर के लिए जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं उसके पीछे सोच है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जो एक्टिविटीज हैं वो लिबरल होंगी। तो इसका एडवांटेज सेक्टरल ग्रोथ के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ये एक फैक्टर है। और ये है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें वो करीब 2.5% या उससे भी कम है। वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादातर फार्मर्स का है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के शायद ये इन्वेस्टमेंट बढ़े, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, और दूसरी एक जो बात उन्होंने कही है कि जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, सामाजिक आर्थिक जो एक बड़ा बदलाव होने वाला है अगले साल तक देश में, जिस तरह का ग्रोथ रेट हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, एक तो ये भी है कि जो इकोनॉमी का जो सबसे वर्स्ट पीरियड था दैट इज ओवर जी। और जो लेटेस्ट एनएसओ ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जबकि पहले काफी ज्यादा माना जा रहा था। इसमें भी अगर हम जीवीए को हमें देखना चाहिए, ग्रोस वैल्यू एडिड, दैट इज अ रियल पिक्चर, जो 7.2% का उसमें कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये नेट टैक्सेस को अगर अलग कर देते हैं तब ये नंबर आता है, एक्चुअल प्रोडक्शन उससे दिखता है। जी जी। तो इसका जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं और काफी सारा फोकस स्कीम्स का लोअर स्टार्टा को मेन स्ट्रीम सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लाने का है, तो उसका एक एडवांटेज दिखेगा। हरवीर जी, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। We are joined in by Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, हेलो, you're welcome, Ratnakar. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा सवाल है, अभी लिक्विडिटी बहुत है के नाम पर अभी मार्केट तो ऑल टाइम हाई है। जी। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं तो उन्होंने अभी जो प्रॉफिट में जो समझो शेयर्स है वो बेचकर कैश हाथ रखने से कैसा, आपका क्या सलाह है कि प्रॉफिट वाले शेयर बेच के वेट करेंगे मार्केट जब भी नीचे जाएगा तभी बाकी जो नीचे आने वाले शेयर्स ले सकते? देखिए, जो इन्वेस्टर है उसको एक तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उसका क्या रिटर्न है उसके देख करके कॉल लेना चाहिए। ये फैक्ट है कि मार्केट अभी लिक्विडिटी ड्रिवन है और जो फंडामेंटल्स है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन उतना नहीं है, सेंटिमेंट्स है। जैसे अभी यूएस में नेक्स्ट प्रेसिडेंट को लेकर के उनका कांग्रेस ने उसको क्लियर कर दिया उनका, और उसमें ये भी लग रहा है कि दोनों हाउस अब डेमोक्रेट्स के पास है, तो फिर से जो है वहां पर स्टिमुलस पैकेज आने का चांस बेहतर हो जाएगा, तो उससे फिर लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो दूसरे ये वैक्सीन वगैरह आ गया है तो उससे भी उसका भी इम्पैक्ट है। तो इसमें ये मार्केट तो कुछ सेंटिमेंट्स हैं और बहुत ज्यादा उसके पीछे रीजन लिक्विडिटी है। बट जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको देखना चाहिए कि अगर उसका रिटर्न अच्छा है तो बट उसको अब ये उम्मीद करे कि मार्केट नीचे जाएगा फिर से इन्वेस्ट करेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस स्टेज। बट अगर उनको प्रॉफिट लेना है, और ये इक्विटी फंड्स में से काफी लोगों ने लिया भी है, जो है उसमें काफी रिडीम भी हो रहा है पिछले 2 महीने में, तो इसका मतलब छोटे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अभी उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बाकी उसके पास ऑप्शन होगा किस तरह के पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्ट करे या उस पैसे को कहाँ डिप्लॉय करे। SPS Jain from Greater Noida joins us now. We welcome you, SPS जी। हाँ, नमस्कार जी। हरवीर सिंह जी भी नमस्कार। नमस्कार। देश में पैसा आने का एक तो है एफडीआई से आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें अगर एफपीआई का पैसा ज्यादा आता है तो वो हमारे मार्केट को कंट्रोल करने लगती हैं। तो इन दोनों में किस माध्यम से पैसा आए जिससे देश की इकोनॉमी को किस में ज्यादा फायदा होता है? देखिए, एफआईज और एफपीआई जो है वो तो हॉट मनी उसको बोला ही जाता है कि वो प्रॉफिट के लिए आता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आता है। मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जब उनको लगता है या कोई भी दूसरा ऐसा डेवलपमेंट होता है तो दैट मनी फ्लाइट्स फास्ट। जो है एफडीआई जो है वो किसी भी एंटरप्राइज में इक्विटी के लिए, नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उस तरह से आता है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। और हमेशा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल वो बेहतर है क्योंकि उसमें कोई कैपेसिटी क्रिएशन होता है, कोई कंपनी का एक्सपेंशन होता है, तो उसमें दैट मल्टीप्लाइज जॉब क्रिएशन एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन। तो एफडीआई ही बेहतर माना जाता है, वो है भी फंडामेंटली इकोनॉमिक पॉलिसी और थ्योरी के हिसाब से। Okay. Harveer, going back to the Prime Minister's interaction with India's leading economists, they were talking about the National Development Agenda, setting up of the National Development Agenda. After this interaction, what should we expect? Keeping in mind that we have the budget coming up now. Yes. We have also a positive sentiment happening in the economy by way of liquidity and by way of even the vaccine, as you very rightly said a while back. So, what would this National Development Agenda
likely to look like in the coming days? You see that we already have a goal of a $10 trillion economy to achieve that level. And the economist advised the Prime Minister so how we can achieve this and which way we should go. So basically more capitalization of banks so that their lending capacity will increase, more privatization so that the government focuses on governance instead of doing more business. So the indication was that these loss-making units should be divested, and reforms basically. Reforms, definitely a big reform agenda is already on. So I think the coming budget will reflect all these things in action. जी हरवीर जी, जो अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत में पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पर बल दिया, और कोविड के पीरियड में हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ की कितनी इम्पोर्टेंस हमें दिखाई दी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पब्लिक हेल्थ में किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देता है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? देखिए, ये फैक्ट है कि जो पैंडेमिक आया उसने एक लोगों को और सरकारों को ये उसकी अहमियत दिखाई कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है, और किसी परिस्थिति में लोगों की जान की सुरक्षा के लिए उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है। काफी हद तक हमने मैनेज किया, लेकिन अभी भी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में नंबर ऑफ बेड्स और मैन पावर जो ह्यूमन रिसोर्स है, प्लस आपका हमें काफी कुछ रिलाय करना चाहिए हमारे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इसलिए जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मैन्युफैक्चरिंग को काफी हम लोग डिपेंड है इंपोर्ट के ऊपर, खासतौर से चाइना के ऊपर एपीआई में। तो हमें यहाँ पर उस तरफ भी इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए और गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए इंडस्ट्री को। तो ये एक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को मिलकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो आपके पॉपुलेशन है उसका बेहतर एजुकेशन में रहना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और इस पैंडेमिक में अगर आप देखें कि जब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, तो आपको आईटी के थ्रू जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। बट इसमें एक बड़ा गैप है रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनमें और अर्बन सेंटर्स में। सो हमें ये डिवाइड को मर्ज करने की तरफ सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और उसमें वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जहां जरूरत हो उसको बढ़ावा देना चाहिए। जी, और हरवीर जी, जैसे प्रधानमंत्री हमेशा ही आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और कल भी अर्थशास्त्रियों से बातचीत में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको एक ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो ये इंटीग्रेशन आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा और क्या स्वरूप होगा आने वाले समय में? एंड बिफोर यू रिप्लाई, हरवीर, मे बी रिमाइंड लिसनर्स that Harveer Singh, editor Rural Voice, is with us. So if you have any question related to business, economic and stock market matters, then you can give us a call on 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. Harveer, please go ahead with your answer. एक्चुअली देखिए, जो सेल्फ रिलायंस का जो एक ऑब्जेक्टिव है और उसको लेकर के पॉलिसीज को काफी चेंज किया जा रहा है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि वैल्यू चेन जो है और सप्लाई चेन, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में वैल्यू चेन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग स्टेज में जाकर के उसमें प्रोडक्शन ऐड होता है, वैल्यू ऐड होता है। तो ऐसे में खास तौर से ये जो आईटी सेक्टर है उनके प्रोडक्ट्स में, सो वी कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक तो हमारा अभी आईटी के खास तौर से हार्डवेयर में इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत है, उसको हम कम कर सकते हैं। प्लस वी कैन ऑल्सो बी ए हब ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें वी हैव स्किल्ड मैन पावर, बट वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू एनकरेज द कंपनीज to get involved into this value chain system. Anil Kharbanda from Delhi joins us now. Anil, we welcome you. Please ask your question.
राजेश लेख जी, आपसे मुझे बहुत अफेक्शन हो गया है काफी, और अमरीश जी को भी प्रणाम और हरबीर जी को भी प्रणाम। शुक्रिया जनाब। इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं। आई हैव अ होस्ट ऑफ क्वेश्चंस, बट फिलहाल मैं एक दो पर फोकस कर रहा हूँ। एक तो केन्स, जैसे जॉन एम केन्स या जेम्स एम केन्स थे, जो जेम्स मेनर्ड केन्स है, जॉन के गिलब्रेथ, कभी कभी इनका भी फंडामेंटल्स के रूप में इकोनॉमिक्स में उल्लेख, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के तौर पे, थ्योरी के रूप में उल्लेख करें, और इनकी जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है उसकी क्या सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है आज के दिन में, नंबर 1। नंबर 2, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक है, उसके भी इम्पोर्टेंस पर कभी कभी प्रकाश डालें तो आपका बहुत आभार होगा। बहुत सो ही वांट्स जॉन मेनर्ड केन्स की बात कर रहे हैं। जी जी, देखिए उनका तो सीधा थ्योरी था कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो यू कैन क्रिएट मोर जॉब्स, और इसीलिए अगर आप कहें, उनका था कि अगर ये भी कहा जाता था कि आप गड्ढे खोदिए, कुछ भी अगर नहीं है तो उसी में लोगों को लगाइए, सो देन देयर विल बी ए cycle of money supply and employment will be generated accordingly. Okay, Kamal Sharma from Delhi joins us now. Kamal, we welcome you. Thank you, sir, for taking my call. मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 7.7% कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो विद आई वुड लाइक टू नो कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है डेवलप्ड कंट्रीज की और डेवलप्ड कंट्रीज की, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। थैंक यू। देखिए, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इस साल में, और इसमें यह है कि कुछ कंट्रीज ये है कि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं भी है, जैसे चाइना में है, एक आध कंट्री और है, अदरवाइज जो भी जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये बस है कि हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट है वो काफी ज्यादा है। और चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 2 करोड़ 20 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। भुवनेश्वर में CIFA में वैज्ञानिक समुदाय से उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल में ही शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मंजूर 366 करोड़ रुपए में 110 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान, 75 करोड़ रुपए का राज्य का योगदान और 180 करोड़ रुपए का लाभार्थी योगदान शामिल है। We'll take you to the U.S. markets now, where the market scaled new highs yesterday as hopes of more stimulus bolstered after U.S. President-elect Joe Biden said his economic package will be in trillions of dollars. So the Dow Jones Industrial Average rose 57 points or 0.2% to 31,098. The S&P 500 gained 21 points or 0.6% to 3,825. And the Nasdaq Composite added 135 points or 1% to 13,202. For the week, the S&P rose 1.8%, the Dow added 1.6%, and the Nasdaq gained 2.4%. The rally in stocks overcame labor market data early in the day that showed the U.S. economy shed jobs for the first time in 8 months in December. The U.S. President-elect Joe Biden said his administration's economic package will also include unemployment insurance and rent forbearance. The package will be unveiled next Thursday. It is necessary to spend the money now, Biden told reporters, and that the entire package will be in the trillions of dollars. That is good news, and will that have trickle down to the Indian economy? In the economic package? Yes, if you see, Rajesh, even when his appointment was ratified by Congress, and the hope for better stimulus package increased globally, and all the global markets improved only just on the information. And now you see that Democrats will have control in both the houses, Senate and there, so it will be easy for them to announce the package. The policies will be passed. Yes, fast, and basically the coverage of the package will also be more and much better now. Okay, moving on. This more money will be available, and definitely
our companies will get benefit out of that, and market will also get benefit out of that. On that good note, we move on to the next story, which is on oil. The crude oil prices surged nearly 8% during the week to hit their highest level in nearly a year yesterday, supported by Saudi Arabia's pledge to cut output and strong gains in major equity markets. So the Brent crude oil prices climbed 8.1% during the week to settle at $55.99 a barrel. U.S. crude gained 7.7% to also close to $52.25 a barrel, its highest level since Feb. Saudi Arabia this week pledged extra voluntary oil output cuts of 1 million barrels per day in February and March as part of a deal under which most OPEC Plus producers will hold production steady during new lockdowns. The number of U.S. oil rigs rose for the 7th straight week, gaining 8 to 275 this week, its highest since May, according to energy services firm Baker Hughes. Quickly, your views on oil surging nearly 8% vis-a-vis the weakened U.S. dollar. Harveer. You see, Rajesh, when this oil is increasing, the reason is that now economic activities are coming to normal. If you see our December sale of diesel reached at pre-COVID level at a normal level, it means that energy requirement is increasing globally, and winters are there. So that's why if oil prices goes up, it will have an impact on us also in terms of price rise. Yeah. हरवीर जी, अब अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो अब खरीफ का जो बुआई का मौसम आ रहा है, तो अब आप किस तरह का सिनेरियो देखते हैं? ऑलरेडी एग्रीकल्चर में काफी अच्छा इंडिया ने जितना प्रोडक्शन हुआ है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो अगली फसल में आपको क्या किस तरह का सीन दिखाई देता है? एंड ऑल्सो हरवीर, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि बजट 1 फरवरी से होने वाला है, तो उसमें एग्रीकल्चर का क्या योगदान होगा, कितना उसको योगदान दिया जाएगा और कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्चुअली देखिए कि एक तो मॉनसून काफी नॉर्मल रहा इस बार और एक्सटेंडेड मॉनसून था, उसका बेनिफिट ये हुआ कि मॉइस्चर इज गुड। तो रबी का अगर आप देखें, जो सोइंग का जो एकरेज है वो काफी रिकॉर्ड लेवल पे चला गया है। इट मीन्स कि खरीफ का रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बाद वी विल हैव ए गुड रबी प्रोडक्शन। एंड अभी जो 3.4% का ग्रोथ आया है एग्रीकल्चर के जीवीए में, जबकि बाकी सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इस बार फेवरेबल वेदर और एकरेज बढ़ने का नतीजा ये होगा कि वी विल हैव वन मोर बम्पर प्रोडक्शन ईयर इन एग्रीकल्चर। जहां तक बजट में है कि एग्रीकल्चर इज एट द सेंटर ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट का इसमें हमें रिफ्लेक्शन बजट में दिखेगा विद इंक्रीज्ड आउटले फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। और एक आखिरी सवाल हरवीर जी, प्रधानमंत्री जी का कल जो डिस्कशन हुआ उसको लेकर उन्होंने एक खास बात कही नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में, और हम सब ने देखा कि कोविड के पीरियड में इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए नेट कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इवन इंडिविजुअल्स के जो रिक्वायरमेंट है उसमें फाइबर के थ्रू नेट कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अनइंटरप्टेड होती है, स्पीड उसमें आती है। हम लोगों का अभी जो ग्लोबल रैंक में स्पीड काफी लो है, और जो मोबाइल इंटरनेट का जो स्पीड है वो बहुत कम है। ज्यादा काम करने के लिए आपको फाइबर कनेक्टिविटी का इम्पोर्टेंस। जी हरवीर जी, आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। And before we close the headlines once again, Prime Minister interacts with leading economists on charting economic agenda for post-COVID world. The government aims to increase country's fish production to 22 million tons by 2025, and U.S. markets scale new highs on hopes of more stimulus. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.